Hello बच्चों, welcome once again, and this is the second video of classification of elements and their periodicity and periodic properties. हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया अबाउट द पीरियोडिक टेबल्स, फर्स्ट ट्राइड्स के, देन ऑक्टेव्स, लेटर ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, different properties of different groups, how there is a variation in the periodic properties. So इसी में आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, that is ionization enthalpy. So what is ionization enthalpy? The amount of energy required to release the electron is known as an ionization enthalpy. तो इसमें मैंने क्या मेंशन किया हुआ, जनरली मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली. सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस इन मेटल्स विद रिस्पेक्ट टू योर नॉन मेटल्स. What I have written over here, that a quantitative measure of the tendency of an element to lose the electron is given by its enthalpy, that is your ionization enthalpy, and it represents the energy required to remove the electron from an isolated gaseous atom in its ground state. In other words, the ionization enthalpy for an element is the enthalpy change, that is delta H for the reaction. So it gets converted into ions. So atom gets converted into ions, that is why it is known as ionization enthalpy. Ions means there will be a positive charge because it loots the electron. So next point is the ionization enthalpy is expressed in units, that is kilojoule per mole, and we can define the second ionization enthalpy as the energy required to remove the second most electron loosely bounded. So there is a terms like first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, and third ionization enthalpy. Accordingly we decide from which orbital we have to lose the electron. So accordingly we can say, and the ionization enthalpy की जो यूनिट होती है that is kilojoule per mole. Second ionization enthalpy क्या होती है, to remove the second most loosely bound. तो first loosely bound and then second most loosely bound electron. So energy is always required to remove the electron from an atom, and hence ionization enthalpy will always be positive. क्योंकि हमें energy देनी होगी, so it has to always be in the positive form. The second ionization enthalpy will be higher than the first, because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than from a neutral atom. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में. क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ऑलरेडी इट एग्जिस्ट इन एन आयनिक फॉर्म, तो एक आयन से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना थोड़ा मुश्किल होता है. सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, एंड सिमिलरली द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द सेकेंड, एंड सो ऑन. The term ionization enthalpy, if not qualified, is taken as the first ionization enthalpy. ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, हेंस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव. जैसा कि मैंने आपको बताया, there will be lot of energy will be required to release the electron from the neutral atom, so the ionization enthalpy will always be positive. The second ionization enthalpy will be higher than the first one, already मैंने बताया. In the same way the third ionization enthalpy will be higher than the second, and so on. The term ionization enthalpy if not qualified is taken as the first ionization enthalpy. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, accordingly there is a graph plot between the ionization enthalpy in kilojoule per mole and the atomic number. So we will find maxima at the noble gases. Noble gases हमें पता है already क्या है, stable है, because their electronic configuration and outermost octet is already completed. तो स्टेबल फॉर्म में है, उनको आयनाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. सो देयर विल बी लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. मैक्सिमम एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रुप 18, दैट इज योर नोबल गैस एटम्स. ऑन द अदर हैंड मिनिमा अकर एट द अल्कली मेटल, जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें सबसे कम एनर्जी चाहिए, बिकॉज दे कैन ईजिली लूज द इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट, इफ इन multi-electron atoms, the electrons are present in the outermost shell and they do not experience a full positive charge, hence they are shielded or screened away from the nucleus. तो क्या दिया हुआ है, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में, एंड दे डू नॉट एक्सपीरियंस अ फुल पॉजिटिव चार्ज, फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं फील करते हैं, hence they are shielded और screened away. इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, shielded बोलते हैं या screened away बोलते हैं. किससे, न्यूक्लियस से. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किया हुआ, दैट इज इन द सेम सब शेल द पी इलेक्ट्रॉन्स विल गेट शील्डेड अवे बाय द एस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उनको शील्ड कर देंगे पी इलेक्ट्रॉन्स को, एंड द पी इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस. क्योंकि एस पहले होगा, पी बाहर होगा, तो वो क्या फील करेंगे, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के करीब है और पी इलेक्ट्रॉन अवे हैं, सो दे विल गेट फील शील्डेड फ्रॉम द एस इलेक्ट्रॉन्स.
फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस एंड हेंस इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आयनाइजेशन एंड एटॉमिक रेडियस आर को रिलेटेड इन 2 ways। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने सेंट्रली पॉजिटिव, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेंटर में उसमें, सो द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड हैव नो इफेक्ट ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उस पर कोई भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट नहीं होता है। इन द इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरेस्ट एंड न्यूक्लियर कैंसिल सम ऑफ द पॉजिटिव, और जो बीच में होगा वो क्या करेगा, उनको कैंसिल करेगा बिटवीन द, अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा, द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट एंड न्यूक्लियस कैंसिल सम ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज। तो जो बीच वाले हैं वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक दूसरे का रिपल्शन होगा, दे आर हैविंग द सेम चार्ज। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन एन एटम, एटम में विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो एक्चुअल चार्ज से क्या होगा, लेस होगा, इट विल ऑलवेज बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग और शील्डिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे, स्क्रीनिंग और शील्डिंग की वजह से जो एक्चुअल न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है शील्डिंग की वजह से, विच इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इंटरवीनिंग कोर इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टॉकिंग अबाउट सम एनोमलीज, 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम इज शील्डेड अवे, शील्डिंग अवे फील्ड होता है और शील्ड कह सकते हैं हम 2s इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि लिथियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाता है, एटॉमिक नंबर इज 3, that is 1s2 2s2। so the 2s electron in the lithium is shielded from the nucleus by the inner core of 1s। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी 1s शेल अंदर प्रेजेंट है, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो 2s इलेक्ट्रॉन से वो बाहर होंगे। तो शील्डिंग होगी किसकी वजह से, 2s इलेक्ट्रॉन की 1s इलेक्ट्रॉन की वजह से। एज अ रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ नेट पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल क्या होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा किसके ऊपर, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे विच इज़ लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑफ +3। बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें। सो बच्चों प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल्स इन द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। अगर इनर ऑर्बिटल हमारा फुल्ली फिल्ड हो जाता है, कम्प्लीटली फिल्ड, तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा आता है। एंड दिस सिचुएशन अकर्स इन द केस ऑफ अल्कली मेटल्स एंड विच हैव सिंगल आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन प्रिसीडेड बाय अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और ये जनरली हम लोग किस में ऑब्जर्व करते हैं, लिथियम मैंने आपको ऑलरेडी दिस बिलोंग्स टू अल्कली मेटल, अल्कली ग्रुप मेटल्स, तो इनमें ये हमेशा जनरली ऑब्जर्व किया जाता है। नाउ व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड अल्कली मेटल से टुवर्ड्स हैलोजन फैमिली की तरफ जाते हैं, सेकंड पीरियड की हम बात कर रहे हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। और शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होता है by the inner core of electron and it does not increase very much, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, to compensate for the increased attraction of the electrons to the nucleus। okay, next point is thus across a period, across period मतलब हम horizontal की बात कर रहे हैं, left to right की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, आउटवे द शील्डिंग। इसकी वजह से क्या होता है, वो आउटवे कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है, कैंसिल करता है शील्डिंग इफेक्ट को। कंसिक्वेंटली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर एंड मोर टाइटली, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्लोजली बाउंडेड रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ एक्सेस न्यूक्लियर चार्ज, जो कि अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर टाइटली एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। यही रीजन है कि जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, जबकि हम अगर डाउन द ग्रुप में बात करेंगे वर्टिकली, the outer electron is being increasingly farther from the nucleus, there is an increased shielding। इसमें शील्डिंग बढ़ती रहती है, तो जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रहती है ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम की बात करें। और इन केस इंक्रीज इन शील्डिंग आउटवे द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जितना ज़्यादा शील्डिंग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आउटर न्यूक्लियर चार्ज को हमारा ये नलीफाई करेगा एंड द रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेस एनर्जी। जितना ज़्यादा शील्डिंग उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन विल बी लेस।
Now talking about the next point, it is easier to remove 2p electron of boron than the 2s electron of beryllium. क्यों हो जाता है? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी. द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन द बेरिलियम, दो द फॉर्मर हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज. बट क्योंकि जो फर्स्ट वन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, व्हेन वी कंसीडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एंड एस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन अ पी. तो जो एस इलेक्ट्रॉन है उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा पी के रेस्पेक्ट में. And in beryllium, the electron removed during the ionization is an s electron, whereas the electron removed during the ionization of boron is p electron. उसमें हमारा s इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, whereas सेकंड में हमारा p इलेक्ट्रॉन 2p इलेक्ट्रॉन हो रहा है. दोनों में यही डिफरेंस आ रहा है. 2p इलेक्ट्रॉन हमारा बोरॉन का है जबकि बेरिलियम का 2s इलेक्ट्रॉन है. सो द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन, हेंस 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड. तो हमारा 2p इलेक्ट्रॉन क्या है? मोर शील्डेड है. तो उसमें इफेक्टिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम. देयरफॉर इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन कंपेयर टू द रिमूवल ऑफ. बिल्कुल सही लिखा हुआ बच्चों, 2p इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बोरॉन का इजी हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम. दस बोरॉन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन योर बेरिलियम. नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन योर नाइट्रोजन. यहाँ पे भी एक एनोमली है जो डिस्टिंग्विश है, किसके बीच में कंपैरिजन किया गया है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में. द स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. दिस अराइजेज, क्यों अराइज किया? बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज 3 2p इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड्स इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यहाँ पे जो हमारे 3 2p इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रहते हैं? रिजाइड्स इन द different atomic orbital, that is a Hund's rule यहाँ अप्लाई होता है. where is in the oxygen atom 2 of the 4 2p electron must occupy the same 2p orbital. जबकि हम लोग अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वहाँ पे 2 of the 4 2p electrons, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई कर रहे हैं? सेम 2p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. 2p में सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा एंड कंसिक्वेंटली क्या होगा? इजीली हमारा 2p इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं क्योंकि रिपल्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, अट्रैक्शन कम है, तो इजीली हम वी कैन रिमूव द 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन. नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज व्हाई आर लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट प्लेट्स सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. Second is for convenience in systematic study of elements having similar properties. Okay, second answer है इसका to maintain the structure of the periodic table of classification by keeping elements and similar properties in a similar way. Now the second one is elements like zinc, palladium, cadmium are not considered as transition elements. इनको क्यों नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज एज दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स. क्योंकि इनके अंदर क्या है? इनकम्प्लीट फिल्ड d ऑर्बिटल है. फर्स्ट का आंसर बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा आई थिंक. वायर लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को हम क्यों रखते हैं? एक तो कन्वीनियंस और सिस्टमेटिक स्टडी करनी होती है हमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का. सेकेंडली टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कीपिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज. क्योंकि पीरियोडिसिटी हमारी कैसे आती है? जबकि एलिमेंट्स के जो हमने सेम ग्रुप्स में रखा है दे आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज. नाउ केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज कॉम्प्लिकेटेड. वाई? एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री को हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. उनके अंदर क्या होता है? वेरिएशन होता है हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का. नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब जितने भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं दे एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन इजीली. सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनायन फॉर्म. So the an enthalpy change accompanying the process is defined as electron gain enthalpy. So gain of electron where energy will be given to absorb the electron is known as electron gain enthalpy. The second point है the electron gain enthalpy provides a measure of the ease with which an atom adds. जितना easily एक absorb कर पाएगा न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में देखेंगे. Secondly, depending on the element, the process of adding an electron to the atom can be either endothermic or exothermic. इस प्रोसेस में एंडोथर्म भी हो सकता है और एक्सोथर्म भी हो सकता है. मे बी सम एनर्जी टू बी गिवन सो एज टू एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन. और कई बार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है कोई भी न्यूट्रल एटम देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी. सो इट विल बी बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं हेलोजन फैमिली, दे आर हैविंग द हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय पिकिंग. क्योंकि इसमें क्या होता है ऑलरेडी उनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दे कैन इजीली एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन. सो दे आर हैविंग द हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इसलिए उनकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो नेगेटिव में होती है.
Very important point बच्चों, please remember this point that group number 17, that is a halogen family, they are having less electron, they can easily absorb the electron, that is why their enthalpy, that is your electron gain enthalpy, is negative. Next point is on the other hand noble gases have large positive electron gain enthalpy. noble gas के हमें पता है स्टेबल है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, तो जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कराया जाएगा तो इसमें क्या होगा, हाई और लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पे उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंड ड्यू टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबल से वो अनस्टेबल में जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, high amount of energy will be required, and it may be noted that the electron gain enthalpies have larger negative values towards the upper right of the periodic table. upper right में क्या होता है, large negative value होती है preceding the noble gases. Next point is, as a general rule, electron gain enthalpies become more negative with increase in the atomic number across the period. जैसे जैसे हमारे atomic left to right अगर हम period की बात करेंगे, electron gain enthalpy बढ़ता चला जाएगा with increase in the atomic number. periods में जब भी हम बात करेंगे, because the effective nuclear charge increases, left to right हमारा effective nuclear charge बढ़ रहा है इसमें, and across the period consequently it will be easier to add electron, क्योंकि nuclear charge that is positive charge बढ़ रहा है, तो easily क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी हमारी बढ़ जाएगी यहाँ पे. सो वही मैंने मेंशन किया इस स्लाइड्स के अंदर, दैट इज इन अ पीरियड एंड कंसिक्वेंटली इट विल बी ईजियर टू ऐड इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी होगा टू ए स्मॉलर एटम, सिंस द एडेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज वुड बी क्लोजर टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के करीब होगा इलेक्ट्रॉन, एंड वी शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू बी लेस नेगेटिव. क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा एज वी गो डाउन अ ग्रुप, बिकॉज द साइज ऑफ द एटॉमिक इंक्रीजेज एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें सबको ही पता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे मेटल्स है, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स में हमारी जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, अट्रैक्ट करने की, दैट्स प्रॉपर्टीज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फ्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोर, हमें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द फ्लोरीन, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 4, एंड इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज. आई थिंक बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नो नीड टू डिस्क्राइब, मैं इसलिए अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बच्चों. नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हमें पता ही है, दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, एंड इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू से दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द मेटेलिक प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, मेटेलिक प्रॉपर्टीज के. दस इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज का क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड इज अकम्पेयर्ड विद एन इंक्रीज इन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, और डिक्रीज इन द मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. सिमिलरली द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे टॉप से हम बॉटम पे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ग्रुप में, एंड इट इज अकम्पेन्ड बाय अ डिक्रीज इन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्या होता है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हमारी घटती चली जाती है टुवर्ड्स मूविंग डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम हम जैसे ही जाते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, द वैलेंस इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट शेल में होंगे उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, किसी भी एटम का या एलिमेंट का. द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरचेंजेबली मीन्स वैलेंस. अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं. एक ही बात है, एक ही पहलू, एक ही सिक्के की दो रिवर्स साइड बोल सकते हो आप, या तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दें या उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दें. फ्लोरीन हैज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, बट इन कंपाउंड्स लाइक OF2, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. OF2 में हमारा फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 की होती है. ठीक है, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट. मूविंग ऑन टू द केमिकल रिएक्टिविटी, द डायगोनल रिलेशनशिप्स रेफर्स टू द बिटवीन सर्टेन पेयर ऑफ. अब जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच रिजेंबल इन डायगोनल. जब हम डायगोनली चलेंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल में, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें कुछ रिजेंबलेंस होती है, प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि रिजेंबल करती है एलिमेंट में, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ डायगोनल वे. सो वही लिखा है यहाँ पे,
that the diagonal relationship refer to the relationship between the certain pairs of diagonally adjacent elements in the second and in the third property. and second और third periods के अंदर जो हमारा diagonal relationship है वो यहाँ रिप्रेजेंट किया है. इनमें क्या होते हैं, देयर इज अ रिजेम्बलेंस होती है ग्रुप नंबर सेकंड और ग्रुप नंबर थर्ड के एलिमेंट्स में. एंड दिस करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शोन बाय एस एंड पी ब्लॉक रिस्पेक्टिवली. एस और पी ब्लॉक के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है. दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्टिविटी और डायगोनल रिलेशनशिप्स. The anomalic behavior is attributed to the smaller size, large charge radius ratio. ठीक है, साइज स्मॉल होना चाहिए, चार्ज टू द रेडियस रेशियो हाई होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए एलिमेंट के अंदर. इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंड अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग, वेयर एज द सेकंड मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द ईच ग्रुप. फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4, दैट इज बोरॉन में हमारा क्या है, BF4 नेगेटिव है, वेयर एज द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन एक्सपेंड देयर वैलेंस शेल टू accommodate more than 4 pair of electron, that is aluminum forms AlF6. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट इज फर्दर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द P ब्लॉक डिस्प्लेज द ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म P पाई मल्टीपल बॉन्ड. जितने भी P ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं उनके अंदर जनरली P पाई बॉन्ड की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. जैसे कि मैंने यहाँ N2 डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जनरली मैंने आपको पहले भी बताया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमारा पाई बॉन्डिंग होती है, उसको हम पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं. ये टेंडेंसी जनरली P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर होते हैं एज कम्पेयर टू द सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप. तो यहाँ पे वही मैंने शो किया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट द मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वेयर एज नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मेटेलिक करेक्टर हमारे जितने भी लेफ्ट हैंड में मेटल्स प्रेजेंट है, दैट इज योर अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो लेफ्ट हैंड में हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है. ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, वही मेंशन किया है. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, राइट टू लेफ्ट हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, राइट टू लेफ्ट हमारा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है. दिस इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट विच कंबाइन ऑन द 2 एक्सट्रीम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म ऑक्साइड्स लाइक पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स. सुपर ऑक्साइड जैसे हमें पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स हमारे Na2O2 ये सारे हमारे सुपर ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स फॉर्म करते हैं. सम आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल और बेटर नोन एज एम्फोटेरिक. कुछ की हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दे आर एसिडिक एंड बेसिक, दैट इज वाई दे आर नोन एज एम्फोटेरिक. मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जितने भी मेटल्स है जैसे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोरॉन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, दे आर बेसिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटल्स फॉर्म, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. अमंग ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात करें 3D सीरीज की, द चेंज इन एटॉमिक रेडियाई इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू दोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड. ठीक है. सो द चेंज इन एटॉमिक रेडियाई इज स्टिल स्मॉल among the inner transition metals. तो change in atomic radii बहुत small होता है इन 4F सीरीज में. so the ionization enthalpies are intermediate between S and P. और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो S और P से हमारा जो बीच का F ब्लॉक है वो इंटरमीडिएट रहेगा. इन दोनों के बीच में वैल्यूज आती है हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी की. आयनाइजेशन एंथैल्पी हम किसको बोलते हैं, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे. तो उसकी वैल्यू हमारी F ब्लॉक की कहाँ एग्जिस्ट करती है, S और P ब्लॉक एलिमेंट के बीच में एग्जिस्ट करती है. एज ए कॉन्सिक्वेंस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप नंबर 1 and 2. इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होती है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से कम होती है. सो बच्चों इसमें यही था. अभी तक मैंने आप लोगों को आई थिंक सारा कवर अप कर दिया. केमिकल रिएक्टिविटी हम लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ लिया है इसमें. देन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ लिया. एनोमलस बिहेवियर पढ़ लिया है. क्यों, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है. द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ ओनली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट में हमारे 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हम नेक्स्ट में बात करेंगे दैट इज़ जितने ज़्यादा हमारे ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं दैट इज़ 3s 3p 3d, whereas the second member of the group have 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्योंकि इनमें 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. सिमिलरली मैंने नेक्स्ट की बात की है दैट इज़ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज़ 4. बोरॉन की अगर हम बात करें इसकी कोवेलेंसी 4 हो रही है जब हम BF4 नेगेटिव की बात करते हैं. सिमिलरली अगर हम एल्युमिनियम की बात करें
तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या हो रहा है, वैलेंस शेल टू एकोमोडेट मोर देन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि Al के साथ क्या है, AlF6 तक भी हमारा बन रहा है। फिर हमने p-pi बॉन्ड्स की बात कर ली है। सिमिलरली हमने 3D और 4f सीरीज़ की बात की है, इसमें हमने आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ का डिस्कस कर लिया है। मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात की है मैंने। सो दिस इज़ द फाइनल स्लाइड, दैट इज़ द पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा यही है बच्चों, जिसमें मैंने मोस्टली कवर अप कर दिया है। इसमें फ्रॉम इनिशियल जो हमारे ट्राइड रूल्स था, देन ऑक्टेव रूल था, देन हेसल ने जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन आयनाइजेशन एंथैल्पी, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू गेन द इलेक्ट्रॉन, देन आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस किया। इन केस आप लोगों को कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है चैप्टर में, यू गाइस प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन and please subscribe my channel. And as I always said, my videos and all the topics which I have uploaded, especially for those students who cannot afford expensive tuitions and coaching centers, so please share these videos as much as you can. Thank you so much.